morning. Some more questions. Exercise 17.2, right? So we'll start with question number 5. Question number 5 का first part है. हाँ. What is that? Cos 65 degree upon Cos sin 65 degree upon sin 25 degree sin 25 degree 25 degree plus plus cos 32 degree cos 32 2 degree upon sin 58 degree sin 58 degree 58 degree plus plus minus sin 28 degree sin 28 degree into sec 62 28 degree into sec into sec 62 degree 62 degree plus cos x square 30. उसमें मैंने क्या करा करो भाई डिनोमिनेटर नहीं. हाँ डिनोमिनेटर में कहाँ है. अच्छा sin 28 डिग्री हाँ 28 डिग्री 28 degree into हाँ sec sec 62 degree 62 degree plus हाँ cos x square 30. राइट. दिस क्वेश्चन इसी को कर ले पहले, फिर सेकंड पार्ट बाद में लिखते हैं. ठीक है. तो cos 65 degree can be written as, थोड़ा और इधर से किसका लिखते हैं, ये बड़ा गंदा लग रहा है. इक्वल टू cos 65 can be written as 90 minus 25 degree upon sin 25 degree, right? Yes. Plus cos 32 can be written as 90 minus 58 degree and sin 58 degree minus sin 28 degree. Sin 28 degree can be written as 90 minus 62 degree, और इसको अगर हम लिख लें 1 upon cos 62 degree. क्लियर. फिर बचता हमारा cosec square 30. We cannot do anything with it. So this will be written as cos 90 minus theta क्या हो जाएगा, sin theta sin 25 degree upon sin 25 degree plus cos 58 degree upon, गलत हो गया, sin 58 degree upon sin 58 degree. ये क्या हो जाएगा, cos 90 minus theta क्या हो जाएगा, sin theta sin 58 degree minus sin minus 62, ये हो जाएगा 90 minus theta, sin 90 minus theta will be cos theta into 1 upon cos 62 ऑलरेडी है, और फिर प्लस यहाँ पे cosec स्क्वायर what 30 degree. This 62 degree can be cancelled. This 50 degree, this 50 degree, this 25, this is 1 plus 1 minus 1. ठीक है. हाँ. और फिर -1 हो गया और प्लस cos x square 30. अब जो क्वेश्चन में था वो क्या था भैया, without using trigonometrical table. But I tried in many ways, but I am not getting solution without using the table. So here we are bound to put the value of cosec 30. Cosec 30 की वैल्यू कितनी है, 2. आंसर आ गया हमारा 5. खैर I tried, but आंसर नहीं. I tell you the people, right, to try it,
without using table. As in question, if it is not possible, then it is quite strange that the book writer is writing this statement, isn't it? So this has to be, I'll again check it. I'll keep on checking that whether it is possible without using table or not. But this is the solution using table. Here we are using table, right? Otherwise we are not using table, but in this case we are using the table. Okay? Anyways, fifth का second part. इसका सेकंड पार्ट लास्ट सेशन जो लास्ट हमारा जो सेकंड वीडियो था उसमें क्या किया था, दिस क्वेश्चन आई ट्राइड, आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन इन लास्ट, है ना, वी डिडंट कंप्लीट दैट क्वेश्चन, हमने कंप्लीट नहीं किया था इसलिए कि आई थॉट कि मैं और कोशिश करूं कि कैसे ये हो सकता है बिना टेबल के यूज किए, तो वो क्वेश्चन अधूरा रह गया था, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन इसका ये है, और कोशिश करो सभी लोग कि भाई अगर विदाउट टेबल के यूज के अगर ये हो सकता है तो जरा कमेंट करके जरूर बताना कि भाई हम भी उसको देखें। और मैं जो राइटर है बुक के, उनके जो खैर ख्वाह लोग होंगे ना जिन्होंने बुक लिखी है, उनके कोई खानदानी या जो भी होंगे, उनके बच्चे या जो भी व्हाटएवर, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो भी ट्राई करें। अगर लिखा है बच्चों के लिए कि बिना टेबल यूज किए ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो हो सकता है उनके पास कोई सोल्यूशन हो इसका। खैर, एनीवेज, सेकंड पार्ट, sec 29 upon cosec sec 61 29 degree upon cosec 61 degree cosec 61 degree हाँ plus प्लस 2 cot 8 2 cot 8 cot 8 into 8 8 हाँ हाँ degree into हाँ cot 17 degree into Cot cot 45 degree 17 डिग्री इंटू cot 45 degree 45 डिग्री into cot 73 degree cot 73 degree 73 डिग्री into cot 82 और भी है हाँ आगे 82 के बाद हाँ इंटू cot 82 degree cot 82 डिग्री minus माइनस 3 into 3 इंटू bracket ब्रैकेट sin squared 38 साइन स्क्वायर 38 plus sin square 52 साला बहुत लंबा क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम काम ही नहीं था कोई इतना लंबा क्वेश्चन। इसके बाद भाई बता 73 डिग्री के बाद into cot इंटू कॉट 82 82 minus माइनस 3 3 bracket ब्रैकेट sin square 32 साइन स्क्वायर 38 38 plus प्लस sin square 50 साइन स्क्वायर 52 52 बस बस। तो हो मेरे रामा हो रामा हो रामा रामा रामा, एक कॉट 8 डिग्री इसका सम 90 डिग्री, कॉट 17 कॉट 73 इसका सम 90 डिग्री, कॉट 45 की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। अगेन वी आर बाउंड टू यूज द टेबल, again we are bound to use the table. Anyways, let us start. Sec 29 can be written as, मैंने कहा है फिर से वो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जरूर लिखना क्वेश्चंस में, cos 90 minus theta is equal to sin theta, और sin का भी हमने यूज किया है नहीं, sin 90 minus theta is equal to cos theta. This we have to write. Here sec 29 को we can write 90 minus 61 degree upon cosec 61 degree minus 2 cot 8 degree can be written as 90 minus 82 degree. Correct? And into cot 17 can be written as 90 minus 90 minus 73 डिग्री, और cot की वैल्यू 1 होती लिख दीजिए। इसकी वैल्यू यहीं पे खत्म कर देते हैं इसको,
इंटू One. 1 इंटू, अब इंटू क्या बचता है, कॉट 73 डिग्री बचता है, फिर इंटू बचता है, इंटू यहां लगा देते हैं, इसके बाद बचता है कॉट 82 डिग्री, इसको नहीं छेड़ना है भाई, दोनों का जिनका सम 90 डिग्री है उसमें से एक ही को छेड़ना है हमको। और इसको छेड़ना क्यों है, इसको अगर हम लिख लें भाई, कॉट 82 डिग्री को क्या लिख लें, tan 82 डिग्री, और दिस कॉट 1 अपॉन tan 73 डिग्री, क्लियर, ये लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू 1 होगी। अब 3 की बात करते हैं, एक को इसमें चेंज कर लेते हैं, साइन ये रहने दो क्योंकि साइन हमें शुरुआत में चाहिए होता है, साइन 38 डिग्री प्लस साइन, यहां पे क्या लिख सकते हैं, Sin square 38 degree. साइन 90 माइनस 50, 38, 90 माइनस 38, 38 38 डिग्री का होल इक्वल टू स्क्वायर, कॉस होल स्क्वायर कहाँ आ गया फिर? कॉस 38 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 52 को, साइन 52 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 38 डिग्री विच विल बी इक्वल टू कॉस 38। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 38 डिग्री। अब आते हैं, पापा वहाँ पे आपने माइनस क्यों लगाया जब प्लस है तो? कहां पे, ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे? नहीं नहीं, इसके ये? बीच, इधर सबसे पहले वाले पे। यहाँ हाँ प्लस लिखो, माइनस किसने कहा, आपने। अब यहाँ पे हम इधर आएंगे नीचे, यहाँ पे ये रीजन हो गया ना, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक 61 डिग्री अपॉन कॉसेक 61 डिग्री प्लस 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, tan 82 डिग्री इंटू 73, tan 73, 73 डिग्री इंटू 1 छोड़ दो, tan 73 डिग्री इंटू 1 अपॉन tan 82 डिग्री, क्लियर। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस cos square 82 डिग्री 32, माइनस 3 इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और थीटा क्या है, 38 डिग्री है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी पूरे की, ठीक है। बाकी आपने काटा नहीं सारा इसको अब काट रहे हैं ना भाई, tan 82 कट गया, ये कट गया, 1 प्लस 2, यहां से 2 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 आएगा, लास्ट में 3, क्या जाएगा आंसर, 0। इसका सेकेंड पार्ट 0 है। 0 आ जाएगा ना आंसर, ठीक है, गॉट इट। आगे चले, यस। Sixth one is easy. जी।
6 क्वेश्चन बताओ। हो गया 6 क्वेश्चन, तुमने कर लिया? हाँ पहला पार्ट कर दिया। हाँ, हाँ। बड़ी तेजी में चल रहा हूँ। Express each of the following in terms of trigonometric ratios. एक्सप्रेस Each of the following. एक्सप्रेस Each of the following. ईच ऑफ The following. द Following. फॉलोइंग In terms of trigonometric ratios. इन Terms of trigonometric of- ratios of. है Trigonometric ratios of. ट्रिग्नोमेट्रिकल Ratios of. रेशियोज ऑफ Angles between 0 to 45. एंगल Between बिटवीन 0 to 0 to 45. 45 डिग्री। बताओ पहला पार्ट। पहला पार्ट है tan 81 डिग्री Tan? प्लस 81 डिग्री हाँ, प्लस cos 72 cos 72 डिग्री। tan 81 degree can be written as 90 minus 9 9 degree. Cos 72 degree can be written as 90 minus 18 degree. This will become cot 9 degree plus cos 18 degree. Clear? जैसा कि हम जानते हैं tan 90 minus theta is equal to cot theta and cos 90 minus theta is equal to क्या हो जाएगा? cot 9 डिग्री प्लस sin 18 डिग्री। साइन आ जाएगा यहाँ पे, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, साइन 18 डिग्री। ठीक है। सेकेंड पार्ट cot 49 डिग्री प्लस cosec 87 डिग्री cot 49 डिग्री प्लस cosec 87 डिग्री प्लस cosec 87 डिग्री 87 डिग्री। cot 49 degree can be written as 90 minus 41 degree plus cosec 87 degree can be written as 90 minus 13 degree. cot वाला क्या हो जाएगा? tan 41 degree sec प्लस 3 cosec क्या हो जाएगा? sec 3 13 degree. sec 13 कैसे होगा? हाँ, तो 13 लिखे हो तो 13 होगा, नहीं लिखोगे तो नहीं होगा। अब 7th है। 7th कहता है कितना विदाउट time हो यूजिंग गया? टेबल। 17 मिनट हो गए, 18 मिनट हो गए। तो छोड़ो इसको, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।